Chalo, good morning, guys. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, Good sir. morning, Yes, sir. good morning. So, what a story we have started last time? We start talking about HTML5, right? And in HTML5, you comes to know how the things are going to be work out. In HTML5, when we are going to work out about the execution, in HTML5, data is going to be work out, or form is going to be created, which is going to be stored in the form of some kind of fields, which are also called as we call it as required field validation. हम लोगों ने उसे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन बोला था, राइट? और रिक्वायर्ड Yes. फील्ड वैलिडेशंस आर गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर मेकिंग कंपल्शन फॉर द यूजर टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल. We comes to know how the different kinds of validations is going to be worked out in HTML, how we can deal with the execution of HTML, and what are the ways to be go for the execution of HTML5. So we talk about the both HTML and HTML5, right, guys? Yes or no? Yes. Yes. So have you clear about this validation? हे समजले का तुम्हाला? Everyone got clear for this? How to Yes, take, sir. how to perform required field validation, how to perform name validation, then how we can work out with this more. Let me show you how we can work out with some more validation. Let's say HTML5 validation pattern. Okay, validation pattern. So when you want to apply the any kind of validation, you just have to reply with the kind of patterns which are going to be provided onto the different kinds of website, and we call it as an what, regular expression. We call it as an what, regular expression. आता इथे पहा, here this is the pattern is designed for the 3-letter country code. Okay, it may be in belonging to the A to Z. Okay, so it's just going to work out for 3-letter country code. So n numbers of patterns we are getting, n numbers of pattern. If you want to go for alphanumeric password, as the password we had talked about last time, a password which have a minimum 8 character length. ओके, असा पासवर्ड ज्याला 8 कॅरेक्टर असले पाहिजेत. त्याच्यानंतर मिनिमम 1 कॅरेक्टर इज देअर. ओके, 1 कॅपिटल लेटर इज देअर, 1 स्मॉल लेटर इज देअर. ओके, and we just want to go for that kind of applications or that kind of execution. So what we can do in that case, we can just apply the validation to our HTML form. And what is the advantage of that validation? ॲडव्हान्टेज काय असतो व्हॅलिडेशनचा, की आपण त्याला वर्कआउट करताना जो काही आपण इनपुट डेटा घेतोय, वी कॅन जस्ट कीप इट प्रॉपर सो दॅट user will restricted to give the right information. Am I clear, guys? So you can get the different kinds of validation. You just need to search onto the Google and just copy and paste that validation. Okay, so see here some letter only. If you want to take the letter only, then this type of pattern is given, A to Z. If you want to take number only, 0 to 9 plus pattern is given. If you want to take email as an input, you can use input type is equals to email, or you can use this pattern. If you want to password, accept at least one number and one more uppercase and one lowercase and at least 6 more character. Getting my point, guys? This is also kind of pattern getting to be work out. If you want to take phone number as an input, 10 digit, 0, 9, we are already deal with this. Alphanumeric values, letters and digit. अल्फान्यूमरिक व्हॅल्यूज म्हणजे ज्याच्यामध्ये नंबर्स आणि डिजिट्स असले पाहिजे, दॅट आर ऑल्सो गिवन. ओके, अल्फान्यूमरिक पासवर्ड 6 to 12 कॅरेक्टर्स. ओके, so that the things URLs, if you want to go for URLs, you just need to pass this one, pattern is equals to. Okay, so likewise the patterns are going to be work out when you want to deal for the taking input from console. You can make validation of your form so that user can give the proper input will done by using these validations. Am I clear, guys? Yes. Cleared all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके ना? सो इस तरीके से हम लोग वैलिडेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग वैलिडेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये जो है वो हम लोगों ने देखा HTML5 के वैलिडेशंस. सो वी कैन कीप यूज़र डेटा सेफ and user data proper through this one. Okay, now let's move toward the next thing. Now अब तक हम लोगों ने जो देखा that we are only talking about HTML and HTML. Now what I want to do, I just want to go to make my HTML pages more attractive. Okay, अब तक हम लोगों ने जो देखा that we are only deal
with the execution of HTML. Now I am moving toward the next concept, which is too much important to understand. Okay, बहुत important है इसे understand करना. देखिए हम लोगों ने HTML पेज को create किया है. Okay, as we created the HTML page, we want to decorate this page. हमें क्या करना है, इसे decorate करना है. We just want to decorate this page. Okay, हमें क्या करना है, इसे decorate करना है. तो हमें अगर इसे decorate करना है तो what the thing we have to do for this, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कैसे वर्कआउट करना पड़ेगा, हाउ वी कैन बिल्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ दिस वन. तो अगर हम लोगों को इसे डेकोरेट करना है तो हम लोग यहाँ पे कैसे डेकोरेट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे. तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको इसे डेकोरेट करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वी हैव टू यूज CSS. ओके, वी हैव टू यूज CSS. ओके, हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है, हम लोगों को यूज़ करना होता है CSS. एंड व्हाट इज दिस CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडेड स्टाइल शीट. ओके, कैस्केडेड स्टाइल शीट, कैस्केडेड स्टाइल शीट. दैट द थिंग वी जस्ट वांट टू वर्क आउट, दैट द थिंग्स वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट. ओके, तो हम लोगों को जो वर्कआउट करना है वो वर्कआउट करना है कैस्केडेड स्टाइल शीट के बारे में वर्कआउट करना है. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कैस्केडेड स्टाइल शीट? इसका पर्पस क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने HTML लिया, बट HTML इज नॉट क्वाइट अट्रैक्टिव. जो फॉर्म्स हम लोगों ने बनाए दैट वाज नॉट रिस्पॉन्सिव, दैट वाज लुकिंग बिट इजी. ओके, मैं बैकग्राउंड में इमेजेस को पुट नहीं कर पाया, मुझे प्रॉपरली ये चीज़ें वर्कआउट करते नहीं आई. तो अगर मुझे इसे सब कुछ प्रॉपरली और अट्रैक्टिव करना है तो इसके लिए जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा, आई यूज़ इट हियर अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट. आई एम गोइंग टू बी यूज हियर अ कैस्केडेड स्टाइल शीट. हाउ वी कैन डील विथ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, how we can work out with cascading style sheet? So let me explain you so bit about this cascading style sheet, or it's important into the your designing point of view. बेसिकली बहुत सारी CSS जो है वो ऑलरेडी प्री डिफाइन ही है, हम लोग प्री डिफाइन CSS को ही यूज़ करने वाले हैं. बट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज कि ये काम कैसे करता है, ये हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपरली सीखना है, वर्कआउट करना है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ दिस कैस्केडेड स्टाइल शीट विल वर्क, इन व्हाट वे इट जस्ट गोइंग टू बी डील. तो CSS के बारे में अगर हम लोग को बात करना है तो हम लोग कैसे बात करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो सी हियर द CSS इज गोइंग टू बी वर्कआउट एज अ कैस्केडेड स्टाइल शीट. तो हम लोग तीन तरीके से CSS को लिख सकते हैं. एक इंटरनल CSS, दूसरा आपका एक्सटर्नल CSS, और तीसरा आपका इनलाइन CSS. ओके, we can write down the CSS in three way. First one is the internal CSS, second one is the external CSS, and third one is the inline CSS. Okay, what I want to do, I just want to decorate my HTML pages. मुझे क्या करना है, HTML pages को decorate करना है, attractive बनाना है. Okay, so अगर मुझे decorate करना है, attractive बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, तो हम लोग उसे CSS के लिए वर्कआउट करेंगे. तो CSS में वर्कआउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले यूज़ करना होता है इंटरनल CSS. हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी हम लोग CSS को लिंक कर सकते हैं, और इनलाइन भी हम लोग CSS को लिंक कर सकते हैं. पर्पस क्या है CSS का? टू मेक द HTML पेजेस अट्रैक्टिव. अगर हम लोग को HTML पेजेस को मेकअप करना है, वी जस्ट वांट टू मेकअप द HTML पेजेस, देन इन दैट केस वी कैन यूज द CSS. ओके, इन दैट केस वी कैन यूज द CSS. अगर हम लोगों को ये HTML पेजेस पे मेकअप करना है. ओके, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग मेकअप नहीं करते तब तक हमें वो अट्रैक्टिवनेस उसका पता ही नहीं चलता है. ओके, हमें उसका अट्रैक्टिवनेस पता ही नहीं चलता है. सो हाउ वी कैन डील विद दिस, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट विद दिस, हम लोग इसे कैसे डील करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, दैट वी जस्ट वांट टू नो, दैट वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट. सो हियर we just want to work out for the execution of our CSS. Am I clear, guys? Yes. Okay, so just note it down.
CSS stands for Cascaded Style Sheet. CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS is going to be workout for the execution of making up or making over the HTML so that it will look much more attractive. Okay guys, so note it down fast, then we'll go on the next one, how we can write down the internal CSS. Just note it down fast. फर्स्ट कीजिए नोट डाउन कि हम लोग CSS की बात कर रहे हैं और CSS क्या होता है. CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडेड स्टाइल शीट. इट कैन बी नोट इट डाउन और वर्कआउट इट डाउन इन अ 3 वेज. पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल, तीसरा होता है इनलाइन. चलो डन, एवरीवन डन? Yeah, done. Done. Okay, so clear what is CSS stands for? Yes, Cascaded style Nina, sheet. Renuka, Nina, Cascaded style. Cascaded style. fine, Sonal. Cascaded style sheet. CSS stands for Cascaded style sheet. CSS का मतलब क्या होता है? Cascaded style sheet. कितने वे से लिख सकते हैं आप लोग? How many ways? 3 ways. 3 ways. Among them, first way is Internal CSS. second, External CSS. third, Internal CSS. Inline इनलाइन CSS. ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल CSS की, कि हम लोग इंटरनली CSS को कैसे लिख सकते हैं. ओके, हम लोग इंटरनली CSS को कैसे लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द वे टू बी वर्कआउट, व्हाट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट. क्या वे है उसका एग्जीक्यूशन का, कैसे वर्कआउट करना पड़ेगा, किस तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा. सो हियर हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. ओके, सो व्हाट इज द थिंग वी हैव टू डू हियर, व्हाट इज द वे वी हैव टू अप्लाई फॉर हियर. लिसन टू मी केयरफुली नाउ. मुझे अगर यहाँ पे CSS को अप्लाई करना है तो मैं किस तरीके से अप्लाई करूँगा. व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड वी हैव टू राइट डाउन फॉर दिस. सो सी, आई एम जस्ट गोइंग टू बी ओपन दिस लाइन ऑफ कोड. Okay, just a moment. Now see, I just open this one. Now going to be write down here style style and then /style. Okay, style/style. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को कभी भी अगर CSS को लिखना है, इंटरनल CSS को लिखना है, तो आप लोग हमेशा उसे style/style में लिखोगे. And style/style always present in head/head. Okay, where you have to write down your line of code inside which tag? बोलिए. Head/head. Style/style. Come again. Style/style. Style/style. And style/style must be present inside head/head. Okay, मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको style/style को हमेशा head/head के अंदर ही लिखना है. Getting my point? Is it clear? Yes, sir. Okay, we have to always write down style/style inside the head/head, and what we call it as an internal CSS. क्या बोलेंगे हम लोग इसे? Internal CSS. Internal CSS we call it. Internal CSS. Okay, so internal CSS is always present into the style/style. अब देखिए मैं इसे कैसे वर्कआउट करूंगा, कैसे एग्जीक्यूट करूंगा. तो सबसे पहली चीज, CSS का पहला बेनिफिट क्या है कि हम लोग देखिए अब तक हम लोगों ने जो टैग्स यूज की, दैट ऑल टैग्स आर प्री डिफाइंड टैग्स. बराबर? ऐसा नो? ओके, Yes, sir. HTML Yes, sir. is already predefined, body is already predefined. तो H1 जब हम लोगों ने यूज किया, H1 वी आर यूज, तो H1 भी क्या था? प्रीडिफाइंड ही टैग था. लेकिन H1 की जो साइज है वो फिक्स है, वो एज इट इज हमें यूज करनी पड़ती है, राइट? सो वी कांट प्रोसीड विद दैट. तो हमें अगर उसकी साइज चेंज करनी है या फिर उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या फिर बाकी चीज़ें करनी है, तो हम लोग उसे कस्टमाइज नहीं कर सकते. ओके, जो जैसा H1 है वो वैसा ही हम लोगों ने यूज किया. लेकिन अब CSS का एडवांटेज क्या है
we can customize this existing tag. ओके हम लोग एग्जिस्टिंग टैग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस CSS? द बेनिफिट ऑफ द CSS इज टू कस्टमाइज द एग्जिस्टिंग HTML टैग. ओके गाइस, समझ में आ रहा है? हम लोग हमारे हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं. हम लोग हमारे हिसाब से उसे वर्कआउट कर सकते हैं. सो व्हाट द थिंग वी कैन डील, व्हाट द थिंग वी कैन एग्जीक्यूट. तो किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. सो सी गाइस, टू वर्कआउट विद दिस, अब मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहली जो टैग मुझे वर्कआउट करनी है वो h1/h1 को वर्कआउट करना है. आई जस्ट वांट टू डील विथ व्हाट, h1/h1. सो हाउ आई कैन डील विथ h1/h1? मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ टैग को. जो टैग को कस्टमाइज करना है आपको, वो टैग का नाम आप लिखोगे एंड जस्ट गिव द ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस. एम आई क्लियर गाइस? Yes. Yes, sir. तो मुझे करना क्या है, आई जस्ट वॉन्ट टू यूज द h1. मैंने बोला कि मुझे h1 टैग को कस्टमाइज करना है. ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू कस्टमाइज h1 टैग. तो मैंने क्या लिखा, h1 ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. ओके, h1 ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस मैंने जो लिखा उसमें h1 टैग को कस्टमाइज करना है, इसलिए h1 ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लिखा. अब मुझे क्या करना है, देखिए जब भी मैं h1/h1 यूज़ करूँ, क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर कुछ तो भी एक कांस्टेंट आना चाहिए. ओके, उसका बैकग्राउंड कलर कहीं पे ना कहीं पे एक कांस्टेंट बैकग्राउंड कलर आना चाहिए. सो हाउ वी कैन डील विद दैट, हाउ वी कैन वर्कआउट विद दैट, कैसे डील करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे. देखिए, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बाय यूजिंग CSS, तो व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड वी हैव टू राइट डाउन. अगर आप लोगों को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बाय यूजिंग CSS, सो व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड वी हैव टू राइट डाउन. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू राइट डाउन सिंपली BACK बैकग्राउंड -color: #6 डिजिट नंबर. समझ लीजिए पहले, बाद में वर्कआउट कीजिए. अगर आपको कोई भी h1 टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू फॉर दैट, बैकग्राउंड -color: #6 डिजिट नंबर. अब देखिए व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस. अगर मैं लिखूँ h1/h1 और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वेलकम टू iBase एंड लेट्स ओपन दिस पेज, नो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, क्या मिलेगा मुझे. सी आई एम गेटिंग सम कलर इनटू द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट, हेडिंग टैग. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes. ओके, समझ में आ Yes, रहा है? sir. नहीं समझा है तो वापस से पूछे, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, बट इट मस्ट बी क्लियर. क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए अगर हम लोगों को हेडिंग टैग को कस्टमाइज करना है, मैंने हेडिंग टैग को कस्टमाइज कैसे किया, मैंने सिंपली उसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड किया. हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जो हमें चाहिए, उसकी फॉन्ट से. अब h1 की साइज़ तो फिक्स है, अगर हमें लगा कि उसकी बड़ी चाहिए उससे बड़ी भी कर सकते हैं. अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, जब भी आप h1 टैग यूज़ करोगे इन यूर HTML पेज, तो हमेशा उसका बैकग्राउंड कलर आपको यही मिलेगा. क्लियर? हैव यू क्लियर दिस वन Yes, गाइस? sir. Okay, so what is the meaning Yes, sir. of CSS? CSS का बेनिफिट क्या है, CSS का मीनिंग क्या है? CSS का मीनिंग और CSS का एडवांटेज ये है कि हम लोग कोई भी टैग को कस्टमाइज कर सकते हैं. क्लियर? हम लोग कोई भी टैग को कस्टमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द इंटरनल CSS लाइन ऑफ कोड. ओके, और इंटरनल CSS कैसे लिखे होंगे आप हमेशा, कौन सी टैग के अंदर,
यस प्लीज, Style के अंदर. स्टाइल स्लैश स्टाइल के अंदर, एंड स्टाइल स्लैश स्टाइल प्रेजेंट इन Head slash हेड स्लैश हेड. मुझे H1 को कस्टमाइज करना था इसलिए मैंने लिखा H1 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 background H1 opening brace closing brace. closing this. Okay, so H1 opening brace closing brace we have worked out, and then after that I want to change the background color. तो मुझे अगर background color change करना है तो क्या करना पड़ेगा? What I need to write down? Background hyphen color colon hash 6 digit number. सर नंबर की जगह अगर कलर का नाम लिखे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके गाइस, सर एक्सटेंशन पूछ रहा हूँ HTML एक्सटेन्शन मध्ये काही चेंज नाही. डॉट HTML नावानेच पेज सेव्ह करायचं आहे. दिस इज अ इंटरनल CSS. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस सर. Okay, Yes, sir. so style Yes, slash sir. style we are write down, and inside that we are just write down this line of code. What is the line to change the background color? Tell me once again. H1 opening brace closing brace Hmm. background color. Then background colon slash 6 digit code. Background hyphen color colon hash 6 digit number. Am I clear, guys? Yes. Background hyphen color colon hash 6 digit number. Okay, now try to work out. करा workout. Do it fast. Background hyphen color colon hash 6 digit number. Simple story we have to do, and simple logic we have to execute. We are just change the background color. अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर चेंज किया. किसका? H1 टैग का. अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे बताइए अगर मुझे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना रहा तो क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू राइट डाउन? body opening brace closing brace. Yes. What we need to work out, what we need to execute. अगर हम लोगों को बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इट्स वेरी इजी टू वर्क आउट. हाउ वी कैन वर्क आउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट? वी जस्ट वर्क आउट विथ सिंपल एग्जीक्यूशन. जस्ट जहाँ पे मैंने H1 लिखा था वहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉडी. ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, दिस कलर इज गोइंग टू बी अप्लाइड टू माई बॉडी. ओके, हम लोग बाय यूजिंग CSS बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं. सिंपल वे इज देयर. जस्ट जो हम लोग टैग कस्टमाइज कर रहे हैं उस टैग को आप लोग लिखिए. मुझे बॉडी को कस्टमाइज करना था इसलिए मैंने बॉडी को लिखा, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लिखा, एंड विल प्रोसीड फॉर एग्जीक्यूशन. ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अब आगे मूव हो रहा हूँ. नाउ आई वॉन्ट टू पुट इमेज एज अ बैकग्राउंड. ओके, I want to put image as a background. अब मुझे क्या करना है, इमेज पुट करनी है बैकग्राउंड में. किसके? तो HTML पेज के. I just want to put image as a background. So how we can put image as a background? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आप अगर आपको इमेज एज अ बैकग्राउंड पुट करना है तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है. सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात यह है कि अगर हम लोगों को इमेज एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है तो इमेज एज अ बैकग्राउंड यूज़ करते समय जैसे हम लोगों ने पहले इसे पुट किया था, इमेज को पुट किया था इमेजेस फोल्डर में, वैसे ही हम लोग कोई भी इमेज इमेजेस फोल्डर में पुट करेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग ऑन टू द गूगल एंड लेट्स डाउनलोड हियर बैकग्राउंड इमेजेस. बैकग्राउंड इमेजेस जैसे चाहे, विच इज़ कोरिलेट टू योर प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उससे थोड़ा कोरिलेट होना चाहिए. मैं रैंडमली कोई भी इमेज लेता हूँ. लेट्स आई वांट टू टेक सम इमेजेस. लेट्स सिलेक्ट सम पैटर्न्स ऑफ द इमेजेस लाइक हियर. यहाँ से कुछ एक इमेज में सिलेक्ट करता हूँ एंड आई वांट टू पुट दैट इमेज इनटू द बैकग्राउंड. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, इसे मैं बैकग्राउंड में पुट करना चाहता हूँ. ये इमेज है, जो इमेज आपको पुट करनी है यू कैन जस्ट टेक दैट वन एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड यू कैन प्रोसीड. सो आई वांट टू गो फॉर दिस इमेज एज वेल.
ओके, सो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, लेट्स से डाउनलोड दिस इमेज। लेकिन इसे सेव करते समय मैं किस में सेव करूँगा, जिस प्रोजेक्ट में मेरा पेज है, ओके, जिसमें मेरे पेजेस प्रेजेंट है उसके इमेजेस नाम के फोल्डर में मैं इसे सेव करूँगा। आई एम जस्ट गोइंग टू बी पुट दिस वन इन टू द इमेजेस फोल्डर। तो आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर आपको कभी भी HTML पेज को वर्कआउट करना है तो हम लोग HTML पेज को कैसे वर्कआउट करेंगे, सॉरी इमेज को वर्कआउट करें तो इमेज को कैसे वर्कआउट करेंगे, आपकी इमेज कहाँ पे होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, इमेजेस फोल्डर के अंदर। ओके, योर इमेज ऑलवेज मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड अ फोल्डर विद द नेम ऑफ इमेजेस। ओके, आपकी इमेज इमेजेस फोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नाउ व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड आई नीड टू राइट डाउन। मैंने इसे सेव कर दिया यहाँ पे। ओके, आई सेव्ड इट, आई जस्ट गोइंग टू, आई एम गेटिंग दिस इमेज हियर। नाउ व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड आई नीड टू राइट डाउन। अगर मुझे इमेज को पुट करना है इन अ बैकग्राउंड ऑफ HTML पेज, आप किसी के भी बैकग्राउंड में पुट कर सकते हो, आपको जिसके बैकग्राउंड में पुट करना है उसके बैकग्राउंड में आप HTML पेज को पुट कर सकते हो। टू पुट ओवर देयर वी हैव टू राइट डाउन सिंपली बैकग्राउंड हाइफन इमेज, बैकग्राउंड हाइफन इमेज कोलन URL, बैकग्राउंड हाइफन इमेज कोलन URL, बैकग्राउंड हाइफन इमेज कोलन URL। उस इमेज के एक्सटेंशन को मैं चेक करूंगा। सो जस्ट गो राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। तो मुझे जो मिल रहा है, हाँ, ये JFITF नाम का मुझे एक्सटेंशन मिल रहा है। तो रादर देन आप जब शुरुआत करते हो तो पहले ना आप थोड़ा JPG PNG इमेजेस जो होती है उसे वर्कआउट करेंगे। चेक द एक्सटेंशन व्हेन द इमेजेस आर गोइंग टू बी डाउनलोडेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मैं एक्सटेंशन चेक करता हूँ, व्हाट इज द एक्सटेंशन इट हैव, AVIF फाइल दिखा रहा है। आई डोंट वांट दिस वन एज वेल। प्रॉपर JPG PNG फॉर्मेट में आपका इमेज होना चाहिए। हाँ, लेट्स टेक दिस वन नाउ, लेट्स चेक फॉर दिस वन, सेव इमेज एज, ये भी वेब IPF नाम से है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PNG, आई वांट अ PNG इमेजेस। ओके, नाउ लेट्स चेक, लेट्स गो फॉर दिस वन, सेव इमेज एज, हाँ JPG मिल रही है एंड जस्ट नेम इट एज एन BACK, बैक नाम से सेव कर रहा हूँ। ओके, JPG इमेज है, बैक नाम से सेव कर रहा हूँ एंड लेट्स कमिंग टू हियर। नाउ आई एम गेटिंग दिस इमेज बैक, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखूंगा तो आई एम जस्ट गेटिंग व्हाट, .jpg। इसकी जो एक्सटेंशन है वो है .jpg। सो हाउ आई कैन गो टू वर्कआउट विद दिस नाउ, कैसे वर्कआउट करूँगा, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा। लेट्स कमिंग बैक टू द कोड, बैकग्राउंड हाइफन इमेज कोलन URL, सिंगल कोट्स में जिसमें आपकी इमेज है, इमेजेस नाम के फोल्डर में है, BAC के बैक नाम है, .jpg एक्सटेंशन है। ओके गाइस, क्लियर? ऐसा हाउ टू डील, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग। सिंपल तरीका है, हम लोगों ने पहले क्या किया, बैकग्राउंड हाइफन इमेज कोलन URL इन ब्रैकेट सिंगल कोट्स हमारे इमेजेस का नाम स्लैश इमेज नेम .jpg, जो एक्सटेंशन हमें चाहिए वो एक्सटेंशन हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। नाउ लेट्स कम बैक टू द HTML पेज एंड लेट्स चेक व्हाट वी आर गेटिंग एट द बैकग्राउंड। सी, क्लियर गाइस? Yes, sir. So what the story we are work out here, we just work out with the simple execution that we just put what image as a background, image as a background. We can use the any multicolor image as a background which help us to work out on this. तो हम लोग अलग अलग तरीके की images workout कर सकते हैं by using simple way, that is background hyphen image colon URL in bracket single quotes name of image slash extension. Try to work out, try to execute. Simply we have to work out, simply we have to execute. Anything, any difficulties, please free to ask. हाँ, yes, yes, आकाश। तो उसको फिक्स कैसे करना है? फिक्स
बताता हूँ आगे, विल गो स्टेप बाय स्टेप. फिक्स इन द सेंस व्हाट यू वांट टू से. सर देखिए वो इमेज नहीं क्या एक दो तीन मतलब हाँ हाँ हाँ, रिपीट हो रही है, राइट, आ रही है रिपीट हो रही है ना. तो ऐसा रिपीट हो रही हो. हाँ हाँ, विल गो ऑन दैट. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इनटू दिस, पहले पुट कीजिए बैकग्राउंड में. ओके, आई विल टेल यू हाउ वी कैन एलिमिनेट द रिपीटेशन. सर वो सिंटेक्स दिखाओ एक बार. We have to put image as a background. We just want to put image as a background. What is the line of code we have to write on? Background hyphen image कोलन URL इन ब्रैकेट सिंगल कोट. जो फोल्डर में आप लोगों ने इमेज सेव की है उस फोल्डर का नाम बैकवर्ड स्लैश इमेज का नाम डॉट एक्सटेंशन, वॉट एवर द एक्सटेंशन यू वॉन्ट टू गिव, यू हैव टू पुट दैट एक्सटेंशन ऑनली. Done, sir. चलो डन. Remaining all, do it fast. We just want to go for the background hyphen image colon URL in bracket Done, sir. single quotes image slash extension का नाम चेक कीजिए which is important to go. चलो डन एवरीवन. सर माझं वर्क नाही करत आहे. Put the screenshot in the group. Let me check. What is the line of code? डन सर. Done. Everyone got the output? चलो everyone done. Yes, sir. Nikhil, sort it out. Just let me explain him.
color, you write down background hyphen color spelling Nikhil, COLOR. It's not a COLOUR. चलो डन. नाउ लेट्स प्रोसीड. Yes, sir. थोड़ा आगे बढ़ता हूँ. अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है. इसमें ये जो इमेजेस है ना, इट जस्ट गोइंग टू बी कम एज एन रिपीटेड इमेजेस. ओके, सभी जो 4 इमेजेस है, एक ही इमेज है लेकिन वो 4 बार रिपीट हो रही है. क्यों? क्योंकि उसका जो साइज है वो फिक्स है. द साइज ऑफ द इमेज इज फिक्स एंड इट जस्ट गोइंग टू बी रिपीट इट्स पैटर्न. पूरा पेज कवर करने के लिए वो खुद को क्या करेगी, खुद को रिपीट करेगी. तो अगर हम लोगों को ये रिपीटेशन स्टॉप करना है, वी जस्ट वांट टू स्टॉप दिस रिपीटेशन. हाउ वी कैन स्टॉप दिस रिपीटेशन, हाउ वी कैन वर्कआउट विद दिस रिपीटेशन, हाउ वी कैन अवॉइड दिस रिपीटेशन ऑफ द इमेजेस. तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल तरीका है लिखने का. उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना है, व्हाट द स्टोरी वी जस्ट वांट टू राइट ऑन हियर. सी गाइस, हियर वी हैव टू जस्ट सिंपली राइट डाउन बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट कोलन नो हाइफन रिपीट. ओके, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट कोलन नो हाइफन रिपीट. व्हाट द आउटपुट. सी, अब ये रिपीट ही नहीं होंगे. लेकिन रिपीट नहीं हो रही है तो इट मीन्स व्हाट कि ये इतना ही पार्ट कवर कर रही है जितनी वो इमेज है. मैं चाहता हूं कि वो पूरा का पूरा पेज कवर करे. सो व्हाट द नेक्स्ट लाइन वी हैव टू राइट डाउन फॉर दैट, बैकग्राउंड हाइफन साइज, BACKGROUND, बैकग्राउंड हाइफन साइज कोलन कवर, COVER कवर, बैकग्राउंड हाइफन साइज कोलन कवर. व्हाट द आउटपुट. नाउ सी. क्लियर गाइज. 2 टैग मैंने लिखी, 2 लाइन मैंने लिखी. पहली बैकग्राउंड हाइफन रिपीट कोलन नो रिपीट. जब हम लोग पहले वर्कआउट करते थे, वी आर गेटिंग द रिपीटेशन इनटू द इमेजेस. वी आर जस्ट गेटिंग द रिपीटेशन इनटू द इमेजेस. लेकिन वो रिपीटेशन मुझे रिमूव करना था. सो इफ यू वांट टू रिमूव दैट रिपीटेशन, हाउ वी कैन रिमूव दैट रिपीटेशन. कैसे रिपीटेशन रिमूव कर रहे हैं हम लोग. So we just going to be remove that repetition by using simple thing, that is background hyphen repeat colon no hyphen repeat. एक चीज. दूसरी चीज अगर मुझे उसे पूरा का पूरा कवर करना है, I want to cover it completely, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड हाइफन साइज कोलन कवर, बैकग्राउंड हाइफन साइज कोलन कवर. तो ये पूरा का पूरा पेज आपका कवर कर देगा जो हमें प्रॉब्लम जा रहा था. क्लियर गाइज. ओके, सो एग्जीक्यूट, नोट इट डाउन फास्ट. Simple story is there. We are just working with the. हाँ, yes निखिल. सर ते COLOR आहे ना, COLOR बॅकग्राऊंड हायफन कलर तरी वर्क नाही करत आहे सर. आणि त्या दिवसचे सर ते HTML5 चे पण तसंच वर्क नाही केलं. मला स्क्रीन शेअर कर. और शेअर करू का सर. निखिल, डू वन थिंग. एनीडेज इंस्टॉल आहे का. येस सर, आहे ना सर. जस्ट सेंड मी द आयडी इन चॅट. सेंड मी द ओके आयडी. सर. येस. माझं कनेक्ट झालं पाहिजे फक्त. हां, या सेंड मी द आयडी पाठव मला चॅटमध्ये. येस सर. Remaining all, try to work out with these 2 stuff. Choose and make it more attractive. Save image as. Okay, ऐसे सेव कर देता हूँ इन images folder. Let's write down here PIZZA pizza and let's coming back और यहाँ पे पास कर दूंगा pizza.gif, PIZZA pizza.gif. Okay, now what is the output we are getting. Let's see.
ओके, आई एम गेटिंग दैट बॉय रनिंग ऑन दिस. अब इसका अगर मैं ये निकाल दूँ, बैकग्राउंड हाइफन साइज कोलन कवर, नाउ लेट्स सी. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आप लोग इस Yes, तरह sir. के अलग अलग बैकग्राउंड्स इस पे यूज कर सकते हो. ये एक चीज. दूसरी चीज, ये तो हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर ही रहे हैं. इसके अलावा दूसरी जो चीजें हैं जिसमें हम लोग इमेजेस के ऊपर एक बैकग्राउंड में पुट करूंगा और IMG/SRCP में मैं दूसरी पुट करूंगा, वो भी हो सकता है. दैट ऑल्सो वी कैन वर्कआउट. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. ये हो गया बैकग्राउंड्स के बारे में. ये हम लोग ने जो बात की, वो हम लोगों ने बात की अबाउट द बैकग्राउंड्स. हम लोगों ने जो बात की अबाउट द बैकग्राउंड्स. नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन. अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को वर्कआउट करेंगे. व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट. ये जो था ये हम लोगों ने सिंपली वर्कआउट किया विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस बैकग्राउंड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. अब मैं बात करता हूँ टेक्स्ट की. हाउ वी कैन गो फॉर टेक्स्ट. टेक्स्ट यानी जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे कलर H1 के साथ वर्कआउट करना है, H1 बोलिए, P बोलिए, जो भी हम लोग जहाँ जहाँ पे हम लोग को टेक्सचुअल डेटा पुट करना होता है, तो मैं अब बात करता हूँ H1 की. H1 ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस. ओके, सबसे पहली चीज़ हम लोग को ये तो पता है कि जब हम लोग H1 यूज़ करते हैं तो वी आर गेटिंग द आउटपुट लाइक दिस. ये हमारा आउटपुट मिल रहा है. लेकिन अगर मुझे इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, वेलकम टू IBHO मिल रहा है, या कोई भी, नॉट ओनली H1, कोई भी टेक्स्ट का कलर आप लोगों को चेंज करना है, वो मे बी पैराग्राफ का रहो, वो मे बी इसका रहो, तो आप लोग कैसे वर्कआउट करेंगे? लेट्स सी व्हाट इज द कमांड वी हैव टू राइट डाउन. व्हाट इज द एट्रीब्यूट? कलर कोलन हैश, whatever the color you want to apply that color and give the semicolon. So what the output we are getting? See, we are just getting this color to the text. Am I clear, guys? Have you clear? Yes, sir. Okay, Yes. how to use the color, how to use the color to any tag. अब ये अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप P/P में लिखोगे. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ध्यान में रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं बोलूँ कि मुझे बाकी चीज़ों का कलर, यानी ये तो मैंने पैराग्राफ का कलर चेंज किया, मैं अगर बोलूँ कि मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या फिर जिसमें अदर चीज़ है उसका कलर चेंज करना है, तो उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल स्टोरी, दैट इज अ कलर कोलन हैश 6 डिजिट नंबर. ये एक चीज़. दूसरी चीज़, अगर मुझे अलाइनमेंट करनी है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, जैसे ये जो है ये मुझे लेफ्ट साइड अलाइन मिल रहा है, मुझे अगर इसे सेंटर में लाना है तो व्हाट आई कैन राइट डाउन? टेक्स्ट हाइफन अलाइन कोलन CNTR सेंटर. ओके, सो लेट्स चेक नाउ. All is going to be aligned at center. Getting my point? We are using and customizing the HTML tags. हम लोगों को CSS का यूज़ करके टैग्स को अलाइन, हम लोग उसे अलाइन भी कर सकते हैं, हम लोग उसे प्रॉपरली वर्कआउट भी कर सकते हैं. नाउ इट्स कमिंग एट द सेंटर. आपको लगता है कि ये राइट में चाहिए तो यहाँ पे राइट पास कीजिए, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में रहेगा. 2 थिंग्स वी आर वर्कआउट अबाउट द टेक्स्ट. सी हियर आई एम गेटिंग, अगर सेंटर लिखो तो सेंटर में आएगा, राइट लिखो तो राइट में आएगा, लेफ्ट लिखो तो लेफ्ट में आएगा. सो टू अलाइन द टेक्स्ट वी हैव टू राइट डाउन टेक्स्ट हाइफन अलाइन. टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट वी हैव टू राइट डाउन कलर कोलन हैश 6 डिजिट नंबर. ओके, क्लियर गाइस? टेल मी वंस अगेन, मुझे एक बार Yes, बताना. sir. टू चेंज द बैकग्राउंड Yes, कलर, sir. या एकता ये फाइल अटैच कैसे होंगी HTML से? सेम नेम से सेव करनी पड़ेगी? नो एकता, राइट नाउ वी आर यूजिंग द इंटरनल CSS. ओके, HTML नाम से ही हम लोगों को उसे सेव करना है, कोई एक्सटर्नली अदर तरीके से हम लोगों को उसे सेव नहीं करना है. हम लोग उसी तरीके से यूज़ करेंगे जैसे हम लोगों ने HTML पेज को अब तक वर्कआउट किया है. इसके बाद इन फ्यूचर, इसके बाद हम लोग जब एक्सटर्नल CSS को वर्कआउट करेंगे, ये तो अभी इंटरनल होगी, इसके बाद हम लोग एक्सटर्नल CSS को वर्कआउट करेंगे, तब जाके हमें फाइल CSS से स्टोर करनी है और हमें उसे लिंक करना है. ये अभी नहीं करना है हम लोग को, जब हम लोग एक्सटर्नल CSS को वर्कआउट करेंगे, एट दैट टाइम वी जस्ट वांट टू डू इट. क्लियर? Yes, sir. ओके, हाँ चलो गाइज, डू इट फास्ट, वर्कआउट. व्हाट द थिंग वी जस्ट वांट टू डू हियर,
हम लोगों ने क्या किया, इंटरनल CSS को वर्कआउट किया, और इंटरनल CSS को वर्कआउट करते समय वी आर जस्ट वर्कआउट विद द सिंपल एग्जीक्यूशन। दैट इज पहली चीज मुझे बताइए, अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना रहा तो व्हाट इज द लाइन? Background hyphen color colon and 6 digit. कलर कोलन हैश 6 डिजिट नंबर। ओके, क्लियर ना? हाँ, देन Yes, sir. देन Yes, sir. नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे इमेज चाहिए बैकग्राउंड में तो व्हाट इज द लाइन? Background hyphen image colon URL बैकग्राउंड हाइफन इमेज कोलन URL इन ब्रैकेट सिंगल कोट, images slash सिंगल कोट इमेजेस, जो फोल्डर में है वो फोल्डर का नाम, स्लैश image name इमेज नेम dot डॉट जो extension है okay, that is the second thing we have worked out. Now let's go for the third thing is that to align the text, or sorry, to change the color of text. What is the line? color colon hash 6 digit semicolon. So color colon hash 6 digit number. Then I want to change this alignment. What to do? Text hyphen align Text hyphen align colon center right left. Okay, try to work out on this. We'll meet back again on tomorrow. Just finish this one first, then we'll wind up.